مسلم لیگ کاف لاہور کے نائب صدر ملک عرفان، چیئرمین پاکستان کلاتھ مارکیٹ شیخ شہباز، صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ بورڈ لاہور شیخ محمد جاوید نے ڈی جی وال سٹی کامران لشاری کو اعظم کلاتھ مارکیٹ کا وزٹ کروایا۔ مارکیٹ کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ملک عرفان اور شیخ شہباز کی جانب سے ڈی جی وال سٹی کامران لشاری کا والہانہ استقبال کیا گیا اور انہیں پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی جی وال سٹی کامران لشاری کا کہنا تھا کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ جو اعظم کلاتھ مارکیٹ میں تاجر برادری کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ کسی بھی تاجر بھائی کو ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے پہلے بھی مارکیٹ کے درپیش مسائل پر بہت کام کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔ اس موقع پر تاجر برادری کی بڑی تعداد اعظم کلاتھ مارکیٹ میں موجود تھی۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ کے تاجروں نے کامران لشاری کے وزٹ کو خوش آئند قرار دیا۔ خبروں کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ دارالحکومت لاہور کی جانب ہمارے کرائم رپورٹر عدنان بشیر کھوکر کی رپورٹ کے مطابق سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی آپریشن کے احکامات کی روشنی میں ایس پی سٹی کی قیادت میں آزادی فلائی اوور پر پتنگ بازی کے انسداد اور شہریوں کے لیے آگاہی مہم کا اہتمام کیا گیا۔ آگاہی مہم میں ایس پی سٹی قاضی علی رضا، سرکل افسران اور سٹی ڈویژن کے تمام ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ آگاہی مہم کے دوران موٹر سائیکل سوار عوام الناس میں سیفٹی راڈ بھی تقسیم کیے گئے۔ مہم کے اختتام پر ہزاروں پتنگوں اور کیمیکل ڈور کو دریا برد کر کے تلف کیا گیا۔ ایس پی سٹی نے پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں آزادی فلائی اوور پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایس پی سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کا کہنا تھا کہ پتنگ بازی ایک خونی کھیل ہے جسے کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عوام الناس پتنگ بازی کی روک تھام میں پولیس کا ساتھ دے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے اندرون شہر میں پتنگ بازی اور پتنگ سازی نہیں ہوگی۔ ایس پی سٹی قاضی علی رضا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پتنگ بازی اور پتنگ سازی کرنے والے افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 2400 کے قریب ملزمان کو گرفتار کیا اور ملزمان کے قبضہ سے 1,12,000 سے زائد پتنگیں اور 4500 کیمیکل ڈور کی چرخی اور 2099 کے قریب ڈور کے پنے برآمد کیے۔ کے سامنے ہم نے عوام میں جو سیفٹی راڈز ہیں وہ ہم نے تقسیم کرنے ہیں۔ جب یہ سیزن ہمارا اوور ہو جاتا ہے اور پریکٹیکلی پتنگ بازی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ پراپر ایک انتظام موجود ہے۔ ابھی آپ کا کیمرہ آپ کو پیچھے دکھا سکے گا، ہر تھانے کی گاڑی جو ہے اس کے اوپر پینا فلیکسنگ کی گئی ہے تاکہ اویئرنیس ہو۔ ہر گلی مسجد کے جو مساجد ہیں گلیوں کی اور محلوں کی، اس میں اعلانات ہوں گے۔ ساتھ میں ہر گاڑی کے اوپر ایک سیڑھی نظر آئے گی کہ جہاں پر بھی ایکٹیو کہیں پہ پتنگ بازی نظر آئی تو ان کے خلاف فوراً جو ایکشن لے کے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ موقع کی مناسبت سے صرف ایک بات اس کے بعد سوال لیں گے کہ پچھلے سال جب فیصل آباد میں ایک انسیڈنٹ ہوا اور سی ایم صاحبہ نے اس کا نوٹس لیا، اس کے بعد جو نیسیسری قانون سازی تھی وہ بھی عمل میں لائی گئی ہے، جس کے تحت اب سزا میں جو ہے وہ کافی اضافہ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو آپ کے چینل، آپ کے میڈیا کے بھائیوں کے توسط سے یہ میں میسج دینا چاہوں گا والدین کو اور ان بچوں کو جو یہ خونی کھیل کھیلتے ہیں کہ اب کیونکہ گورنمنٹ اور انتظامیہ اس معاملے میں بہت سیریس ہے اور قانون سازی بھی اس معاملے میں ہو چکی ہے، تو آپ اس خونی کھیل سے اجتناب کریں تاکہ قیمتی جانوں کے نقصان سے بچا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور نیوز کے ساتھ میں ہوں من نظارہ رو کرتے ہیں خبروں کا۔ سیالکوٹ تھانہ کوتوالی کے علاقہ بوچر خانہ میں 12 مسلح گنڈوں کی مین روڈ پر اندھادھند فائرنگ، الیکٹرونک کے شو روم میں گھس کر توڑ پھوڑ اور مالک ذیشان پر شدید تشدد۔ فائرنگ سے علاقہ میں خوف و ہراس، دکانداروں کا غنڈہ گردی کے خلاف شدید احتجاج، ارباب اختیار سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج آن نیوز نے حاصل کر لی۔ ہمارے سٹی بیورو چیف شیخ بابر قریشی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ کوتوالی کے علاقے بوچر خانہ میں ذیشان الیکٹرونکس کی دکان کے باہر روڈ پر حیدر، عمر اور شاہد نے 9 کس نامعلوم گنڈوں کے ہمراہ علاقہ میں خوف و ہراس پلانے کے لیے اندھادھند فائرنگ کی اور ذیشان الیکٹرونکس کے شو روم میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور مالک ذیشان پر شدید تشدد کیا۔ اس گنڈہ گردی پر دکانداروں نے شدید احتجاج اور وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف، آئی جی پنجاب اور ڈی پی او رانا عمر فاروق سیالکوٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ہمیں جانی مالی تحفظ دیا جائے۔ واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج نجی نیوز نے حاصل کر لی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ گنڈا عناصر کس طرح علاقے میں دہشت اور خوف و ہراس پلانے کے لیے فائرنگ کر رہے ہیں۔ شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے بیورو چیف خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق جیکب آباد تحصیل ٹھر میں قومی عوامی تحریک کی جانب سے امن امان کے حوالے سے مختلف تنظیموں سمیت وکلا برادری اور سول سوسائٹی کا اعلامی 3 روز کے لیے رہبر چوک تحصیل ٹھر میں بھوک ہڑتال کی کیمپ لگائی گئی۔ امن امان بحال ہونے تک جاری رہے گی اور جیکب آباد پولیس کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ دھرنے میں شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل ٹھر میں آئی روز ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں۔ آئی جی سندھ ڈی آئی جی لڑکانہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تحصیل ٹھر اور جیکب آباد پورے ضلع میں امن و امان قائم کیا جائے۔
ओकाड़ा हसन जनीद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बी डिवीजन की हदूद मोहल्ला अहमदाबाद में कम सिन बच्चे के साथ ज्यादती। बच्चा कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई से महरूम है। बच्चा घर से बाहर खेलने के लिए गया। मुलजम पतंग उड़ाने के बहाने छत पर ले गया। मुलजम अहमद ने 8 साला बच्चे को छत पर ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजम ज्यादती करने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने 8 घंटे के अंदर मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुतासरा बच्चे के लिए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मुलजम को कानून के मुताबिक करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। ओकाड़ा से संजनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा एहसास इदारों के हमरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ईरानी डीजल से भरी एक गाड़ी पकड़ी गई। 2 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ी में मौजूद 3000 से ज्यादा लीटर डीजल कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। गाड़ी को मुतलका पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। खबर शामिल करते हैं बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सरगोदा डिवीजन सरगोदा मैडम शाकरा नूरीन की हदायत पर अमल करते हुए मलक मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल बकर की सरबराही में माहाना प्रोग्रेस रेवेन्यू मीटिंग का इनेकाद। दफ्तर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल बकर में हुआ। तमाम इदारा जात सनतजार दारुलमान कम्युनिटी डेवलपमेंट और मेडिकल सोशल सर्विसेज यूनिट्स की माहाना कारकर्दगी हिम्मत कार्ड की तरसील तकसीम और दीगर एजेंडा पॉइंट्स का तफसीली जायजा लिया गया। मलक मुश्ताक हुसैन की तरफ से डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सरगोदा की तरफ से मसूला हदायत पर मनो अमल दरामद के लिए हदायत जारी की गई। मलक मुश्ताक हुसैन का कहना था कि खसूसी अफराद और फलाही सरगर्मियों के लिए दिन रात कोशा हूँ। कैश करना, लोगों की दुआएं लेना, ये असल आपका हर वक्त ना मैं आपको देख रहा हूँ ना मैं आपको चेक कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको एबिलिटी दी है। आप मेरी पे करेगा आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से। वो अल्लाह को लेशैन कदीर है। ये ना सोचा करें कि हमें तो इसे भी आपको खुशहाल कर सकता है। ठीक, तो आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। एक मुस्तहिक माजूर को अगर एक व्हील चेयर भी आप कहीं से अरेंज करके दे देते हैं ना, उनकी राजा साहब ने एक 2 व्हील पर्सनली एफर्ट करके और इंतहाई डिजर्विंग खातून थी जो मेरे पास आई ना, उसका ना देखिए कंधा होगा बिल्कुल बोल डी सी ऑफिस में जाके अरेंज कर। इस तरह के जो नेकियां हैं ना, ये आपकी खुशकिस्मती की दस्तक होती है, मैं ये समझता हूँ। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा दिलचस्पी लिया करें। और ये जो टाइम किलिंग का कंसेप्ट है ना, एसी सिटी फरहान की F6 मरकज़ में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद उनका कहना था कि वो कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के अहकामात पर अमल करते हुए इंक्रोचमेंट के खिलाफ इसी तरह से एक्शन ले रहे हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने एंकर पर्सन मलक एहतशाम फ़रूक जो कि इस वक्त एसी सिटी फरहान के साथ मौजूद हैं। जी एहतशाम बताइए। जी, अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं F6 मरकज़ में। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे उहदेदारान हैं माशाल्लाह एसीज़ हैं हमारे, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और ऑफ एंड ऑन हम देखते रहते हैं कि वो किस तरह से ऑपरेशन में यहाँ पे आकर दीगर जितने मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला पार्किंग का है। जैसे कि अभी हमने खुद देखा कि पार्किंग के मसाइल पे हमारे बैठे हुए कि हम बैठे हुए थे किसी और काम की घर से, एसी साहब आए हैं यहाँ पे, देखते हैं, उनसे पूछते हैं दीगर कि वो अपने बारे में बताएंगे और बताएंगे कि यहाँ पे आने की क्या वजह है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रहान अहमद है और मैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हूँ। बेसिकली यहाँ पे आने का आज मकसद ये था कि ये पार्किंग वाली जो जगह है, यहाँ पे बहुत सारी जो होटल्स हैं साथ पे, स्पेशली जो छप्पर होटल हैं, ये यहाँ पे सीटिंग और टेबल वगैरह लग के पार्किंग की जगह पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तो उससे होता ये है कि गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पे पार्क नहीं हो सकती, जिसकी वजह से गाड़ियाँ सेंटर में चली जाती हैं और यहाँ ट्रैफिक बंद हो जाती है। ये डिवॉर्सन की बैक साइड मशहूर एरिया है, यहाँ पे पब्लिक कंप्लेंट भी अक्सर आती रहती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया था। तो मैंने जो यहाँ से अभी हमने टेबल कुर्सियाँ जो हैं वो हटा दी हैं। इसमें ऑपरेशन CDA भी करती रहती है, जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्टरेट है वो भी करता रहता है और इन्फोर्समेंट वाले भी करते रहते हैं। लेकिन यह है कि ये हमारी कॉन्स्टेंटली इसमें ज़िला इंतज़ामिया की कोशिश होती है कि हम कॉन्स्टेंटली जो ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पे विज़िट करके वहाँ से जो है ये इंक्रोचमेंट्स हटाता रहें, ताकि एटलीस्ट जो है वो एक ट्रेवर्सिंग के अंदर इशू ना आए। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि अभी हमें मौका मिला कि हम एसी फरहान, जैसे कि हम जानते हैं कि ये इस्लामाबाद में अपने एरिए में कितना अच्छा काम कर रहे हैं।
اس کے علاوہ یہاں پہ ہم پوچھیں گے کہ جیسے یہ بیکاری ہیں ان کے حوالے سے ایک ڈی سی صاحب نے خصوصی مہم جاری کی تھی، وہ سٹارٹ تھی، اور یہاں پہ بھی پوچھیں گے کہ یہ جسٹ کرسیاں ہٹانے کی حد تک ہے یا ایون ہی از جسٹ گوئنگ ٹو گیو دیم سم کائنڈ آف فائن، کیونکہ آفٹر دین کہ یہ جیسے ہی موو کریں گے آئی تھنک سو وہ دوبارہ سے یہاں پہ آ جائیں گے. تو اس بارے میں ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کیا ان کی عملی ہے. نہیں جی، ہم نے صرف کرسیاں نہیں ہٹائیں بلکہ ہم نے ان کے 2 بندے ابھی موقع پہ ریسٹ بھی کیے ہیں، اور ہم ان سے جائیں گے، ان کو پینلائز جہاں تک ہو سکے گا کریں گے، اور ایز پر جو ہمارا پروسیجر ہوتا ہے، اور ان سے ایفیڈیوٹ بھی لیں گے، اور جو بھی پاسبل اس کے اندر انٹرونشن ہوگی وہ کریں گے. سیکنڈلی بیگرز کے اگینسٹ جو ہے وہ مہم اسلام آباد پولیس اور ایڈمنسٹریشن کی کانسٹنٹلی چل رہی ہے. اس میں ہمارے ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائڈ ہیں، اور ہم لوگ اس میں روزانہ کی بنیاد پہ بیگرز کو اٹھاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ بیگرز کا اسلام آباد میں کوئی لا ایز سچ نہیں ہے، تو وہ تھوڑا سا ویک لا ہونے کی وجہ سے جو ہے بیگرز چھوٹ جاتے ہیں جلدی. تو ادروائز جو ہے وہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس میں کانسٹنٹلی، سنس آپ نے جیسے بتایا ڈی صاحب کی ایک وہ چل رہی ہے، تو ہم ان کو اٹھاتے بھی ہیں، ہم ان کو جو سزائیں ہم دے سکتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں. اچھا برو، I'm not just going to take your more precious time. I'm just going to ask you a last question. I think so a bit you can say hard question like administration for administration. جیسے کہ ماشاءاللہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن ہماری اکٹھا کام کر رہی ہے، تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح سے مل کے جس طرح آپ انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کرتے ہو کہ کیا یہ لوگ فائن دے کے باہر آ کے دوبارہ سے وہی کام کرتے ہیں، تو کیا اس کے متعلق کوئی ایسا لا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی اگر یہ دوبارہ سے کریں تو ان کی پلیسز سیل کی جائیں، اور اگر پھر بھی یہ باز نہیں آتے تو ان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن لیا جائے پراپر کہ یہاں پہ دوبارہ سے انکروچمنٹ ہمیں نظر نہ آئے اور عوام الناس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہ ہو. جی بالکل، تھینک یو ویری مچ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سنس ان کو زیادہ پینلائز نہیں کیا جاتا نارملی، کیونکہ بزنس مین ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو ضرورت سے زیادہ ہم پینلائز نہ کریں. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب ان کو تھوڑی بہت فائن یا اگر چھوٹی موٹی اگر پنشمنٹ دے بھی دیں تو یہ واپس آ کے اس کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن ایز فار ایز دیز پیپل آر کنسرنڈ، ہم نے ان کے لوگوں سے ہم ریٹن ایفیڈیوٹ بھی لیں گے، اور اگر یہ دوبارہ کریں گے تو پھر ہم ان کو پی پی سی کے جو سیکشنز ہیں ان کے تحت پراپر ایف آئی آر کر کے ان کے اوپر ہم ان کے خلاف کرمنل کاروائیاں بھی کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ ہم سارا کچھ کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں اے سی سٹی فرحان، جن کے بارے میں ہم آف اینڈ آن دیکھتے ہیں اپنے میڈیا کے اوپر بھی اور دیگر بھی ہم عام پلیسز پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے یہ خود ایکشن لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انکروچمنٹ میں تو خاصی کمی آئی ہے. بیگرز کے حوالے سے بھی ان کی پالیسی ایز پر ڈی سی آرڈرز انہوں نے کافی اچھا کام کیا. دیگر بھی ہم ان کے اچھے کاموں کو جہاں پہ تعریف کریں گے وہاں پہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایکشن کے سمیت جتنے تھانے ان کے انڈر آتے ہیں ہم امید کریں گے کہ وہاں پہ بھی یہ انسٹرکشن دیں گے تاکہ وہاں پہ بھی کچھ اسلام آباد پولیس میں بھی مزید بہتری آ سکے. جیسے کہ ابھی ڈی آئی جی آپریشن کھلی کچہریاں لگاتے ہیں، وہ بھی بہتری لا رہے ہیں، اور ایڈمنسٹریشن میں یہ جیسے اے سیز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ تھانہ جات کے ایس ایچ اوز کو وہاں پہ پابند کیا جائے کہ وہ وہاں کے مسئلے اور وہاں کے جتنے بھی ان کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے موجود رہے ہیں. کیمرہ مین یاسر نوید کے ساتھ اینکر پرسن ملک شام فاروق، اسلام آباد. اے سی سٹی فرحان کی F6 مرکز میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. مزید ان کا کہنا تھا کہ وہ کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے انکروچمنٹ کے خلاف اسی طرح سے ایکشن لیتے رہیں گے. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فاروق، جو کہ اس وقت اے سی سٹی فرحان کے ساتھ موجود ہیں. جی احتشام بتائیے گا. اینکر پرسن ملک احتشام یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈی اے جی صاحب موجود ہے، جنہوں نے یہاں پہ ایک کھلی کچہری کا انعقاد کیا جو کہ خواتین کے لیے تھی، اور انہوں نے کافی حد تک وہاں پہ مسائل سنی اور حل بھی کیے موقع پر. دیگر ان سے جانیں گے کہ آئندہ کے لیے ان کی کیا لائے عمل ہے. تھینک یو ویری مچ جی. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. جی سر. اور انشاءاللہ ہم اسلام آباد کے ایک ایک بندے کے لیے حاضر ہیں، کیونکہ اسلام آباد پولیس اسلام آباد کے لوگوں کے لیے ہے، اور ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے، ان کے مسائل دور کریں گے، اور اس میں ہم اپنی جان تک کسی بھی قسم کی قربانی جو ہے نا اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ کھلی کچہریاں جاری رہیں گی، لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، لوگوں کے گھروں اور دہلیز تک پہنچ رہے ہیں کہ ہم ان کو انصاف دیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. یہ اس کچہری کا انعقاد جس طرح سے کیا جا رہا ہے اسی طرح سے جاری رہے گا، اور آئندہ بھی وہ ایسی کھلی کچہریوں کا انعقاد کر کے عوام کا یہاں پہ جس طرح سے انہوں نے مسائل سنے اور حل کیا یہاں پہ خواتین کا، اسی طرح دیگر مسائل بھی وہ سن کر حل کی جانب جائیں گے. کیمرہ مین یاسر نوید کے ساتھ اینکر پرسن ملک شام فاروق، اسلام آباد.
हरून आबाद से अबर शामिल करते जमीयत उलमा इस्लाम का बिस्मिल्लाह कॉलोनी हरून आबाद यूनिट कायम कर दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम को हरून आबाद में मुनज़्ज़म करने और शहर के इलाके में वार्ड की सतह पर मुनज़्ज़म करने का सिलसिला जारी है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान खुद दीगर साथियों के हमरा हरून आबाद की गुंजान आबादी बिस्मिल्लाह कॉलोनी में यूनिट कायम किया। इस मौका पर हाफिज़ फैसल सदीक जनरल सेक्रेटरी JUI तहसील हरून आबाद दीगर रुफ़का भी हमरा थे। बिस्मिल्लाह कॉलोनी हरून आबाद के यूनिट के अमीर यूनिट बिस्मिल्लाह कॉलोनी बाई अब्दुल जब्बार जनरल सेक्रेटरी साकिब महमूद मुंतखब किए गए। तमाम इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम एक आलमगीर तहरीक है और मौलाना फजलुर रहमान आलम इस्लाम के रहनुमा हैं। पूरी दुनिया की नज़रें मौलाना फजलुर रहमान पर मरकूज़ हैं। पाकिस्तान की सियासत इनके गिर्द घूमती है। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ही अवामी अमंगों के तर्जुमान और वफाक की अलामत है। हरून आबाद फोटाबाद समेत ज़िला बहावन नगर जमीयत उलमा इस्लाम का किला है। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी नरहनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया सरगर्म AC शालीमार की जानब से सेक्टर F3 मरकज़ में कार्रवाई प्राइस लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की जानब से ग्रोसरी स्टोर सब्जी और फल दुकानों की इंस्पेक्शन। AC शालीमार ने बेकरी आइटम्स के स्टॉल भी विजिट किए। DC इस्लामाबाद की शहरियों से प्राइस लिस्ट के मुताबिक खरीदारी करने की हिदायत। सरकारी नरहनामे की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदार की निशानदेही करें। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और जिला कौंसल के दफातर का अचानक मुआयना। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने दफातर का दौरा करते हुए रेवेन्यू मामलात के हवाले से आने वाले साइलिन से पूछगछ समेत सफाई सुथराई का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने जिला कौंसल ऑफिस में ऑफिस रिकॉर्ड की प्रॉपर तरीके से देखभाल और रिकॉर्ड को महफूज बनाने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल आवाम के मुशकिलात के फौरी इजाले के हवाले से कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन गुड गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी और सर्विस डिलीवरी पर अमल दरामद की अवलीन तरजीह है, जिस पर किसी किस्म की कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने AC ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल की तरफ से साइलिन के सहूलत के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान कयूम शेख, CE जिला कौंसल कियानी, SDO अशर शफीक, तहसीलदार अली ज़ुहैब और दीगर रेवेन्यू अफसरान इस मौका पर मौजूद थे। बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने जफरवार रोड पर मॉडल बाजार का भी विजिट किया और वहां पर सफाई सुथराई के साथ ट्रैफिक की रवानी के अमल का जायजा लिया। हरून आबाद से खबर शामिल करते हैं न्यूयॉर्क में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब का अहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदे खसूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह की तकरीब का अहतमाम किया गया और केक काटा गया। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला बहावल नगर के ज़िले जनरल सेक्रेटरी और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 244 हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना इफ्तिखार अहमद, सदर पीपल्स पार्टी जारिजिया हसन घुमन, सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सियालकोट ने हुसूसी शिरकत की। हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना ने सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी अवाम के दिलों में जिंदा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मिशन को बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मुकम्मल करेंगे। सालगिरह की तकरीब में खालिद अवान, चौधरी जमशेद गुज्जर, जफ़र चट्ठा, राजा असद परवेज़, रुखसाना सुहेल, उज़मा गुल, सहेल टीपू, वजीश प्रताप, पास्टर अफजल यकूब, सलमान जफर, फराज अल्लाह खान, नासर सलीम, मुस्तफ़ा भुट्टा, कायम मुकाम सदर पीपल्स लाइव फोरम अमेरिका, सैयद शहबाज अली, इरफान खोकर, तसव्वुर बाजवा, फैसल वालहा, मलिक सदीक, हनान खोकर, बाबर खोकर, यासर गुज्जर, सैयद रियाज वकार, जफर इकबाल इम्तियाज, अशरफ अता, मकसूद अली कंबो, राना अहमद, सलमान शलवानी, आमर मेमन, अजीज़ नज़ामानी, चौधरी कैसर, फाहद जुनेजो और राना अहमद समेत कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुवीरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खवातीन को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाहर खड़े टाउट माफिया लोग भी अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। ये लड़का है जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के पैसे लेकर औरतों को दे रहा है। इसका तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि ये लड़का बाहर खड़ा है और औरतों से डील करता है कि शनाख्ती कार्ड दे दो और आराम से बैठ जाओ, मैं आपको पैसे लेकर देता हूँ, 1000 रुपया लूँगा। औरतें इसकी बात मान लेती हैं और अपना शनाख्ती कार्ड दे देती हैं। फिर ये कॉल करता है, अंदर से एक लड़का आता है और साथ में औरतों को भी अंदर ले जाता है। औरतें पैसे लेकर बाहर आती हैं, फिर अंदर से लड़का आता है, वो कार्ड इस लड़के को वापस करता है, फिर लड़का कार्ड औरतों को देता है और फी कार्ड 1000 रुपया वसूल करता है। वीडियो में साफ साफ ये लड़का औरतों से कार्ड पकड़ता दिखाई देता नजर आ रहा है। जब ऑन न्यूज़ की टीम ने सारा मामला बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के इंचार्ज नासिर साहब को बताया तो वो साफ इनकार करके ये लड़का मेरी टीम का हिस्सा नहीं है। इस तरह के कई लोग बाहर खड़े हैं और इनके अंदर बैठे लोगों के साथ इनके राब्ते होते हैं जो इस तरह अपने पैसे गरीब औरतों से वसूल कर रहे हैं। दूसरी जानब वो गरीब औरतें जो मजदूर हैं, चल नहीं सकती,
गेट से अंदर नहीं जा सकती, वो अपने पैसे वसूल करने से महरूम हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे टाउट माफिया लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गरीब औरतों को पैसे इनके घर की दहलीज पर मिलने चाहिए, जैसे इजी पैसा है, JS कैश है। इसी तरह का हुकूमत को प्लान तैयार करना चाहिए ताकि ये जो बाहर बैठे लोग हैं इनसे गरीब औरतें बच सकें। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डेयर की जिंद। मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मुगवी अली नवाज के कत्ल के खिलाफ लवाहकीन का कौमी शरह पर धरना। कौमी शरह पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुगवी को अगवा के बाद कत्ल करके लाश चोलिस्तान में दफन की गई। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। लवाहकीन पुलिस मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर रही। अब रुक करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक दुल्हा अगवा होने से बच गया। कराची का दुल्हा दुल्हन लेने घोटकी सी पैक इंटरचेंज पर आ पहुंचा। पुलिस ने अगवा होने से बचा लिया। थाना बी सेक्शन पुलिस ने खुफिया ज़राए और जदीद टेक्नोलॉजी से घोटकी सी पैक इंटरचेंज पर दूल्हे को अगवा होने से बचा लिया। SHO काबुल भैयो कराची के रहायशी मोहम्मद जफर का कहना है कि सोशल मीडिया पर शादी का इश्तहार देखा, राब्ता करने पर यहाँ पहुंचा हूँ। कराची में होटल पर बावर्ची का काम करता हूँ। कई हफ्तों से डाकू राब्ते में थे। जफर SSP की समीउल्लाह सोमरो की जानब से टीम की बेहतर कार्रवाई पर 50,000 इनाम का ऐलान। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। देसी शराब की बड़ी कैब बरामद, मुलज़म गिरफ्तार। पुलिस का मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर पुलिस को इतला मिली कि छविका रोड पर बदनाम समाना मंशियात फरोश फिदा हुसैन वालिद गुलाम मुर्तज़ा कौम सैयद बड़ी मिकदार में देसी शराब फरोख्त करके ले जा रहा है। गश्त पर मौजूद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अख्तर ने दीगर एहलकारों के हमरा जाकर फिदा हुसैन मंशियात फरोशों को काबू किया, जिससे 29 लीटर देसी शराब से बड़ी जेरी केन भी बरामद हुआ। पुलिस थाना सदर बहावल नगर ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलज़म को पाबंद हासिल किया। SHO ताहर शीना का कहना है कि IG पंजाब उस्मान अनवर के विजन और DPO नसीबुल्लाह खान की हदायत पर जान पेशा नासर और मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर तरीके से जारी है। बारखान के इलाके छपर में कार, गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादम, 3 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर ट्रीटमेंट करके जख्मियों को तशवीशनाक हालत में करीब अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बारखान के इलाके छपर में कार, गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादम, 3 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर ट्रीटमेंट करके जख्मियों को तशवीशनाक हालत में करीब अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। खासा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया जो मोटरसाइकिल को टक्कर लगने से 3 मोटरसाइकिल सवार जख्मी, जिनमें 8 साल लड़का भी शामिल है। गाड़ी सवार जाए मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस जरा इतला मिलते ही पुलिस जाए वाक़या की तरफ रवाना। सऊदी अरब पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम की जानब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कारोबारी अफराद ने पाक सऊदी तिजारती और सरमायाकारी के हवाले से इजहार ख्याल किया और कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दो तरफा तिजारत एहसन अंदाज से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जद्दा और पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम सऊदी अरब के इश्तराक से अलकरम अलबलाद होटल मदीना मुनव्वरा रोड अलबगदादिया में पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम की मेज़बानी में शानदार इशाइया का अहतमाम किया गया, जिसमें कम्यूनिटी की मौजूद शख्सियात, कारोबारी हजरात, कौंसलेट के अफसरान और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी कौंसलर जनरल पाकिस्तान मतईन सऊदी अरब जनाब खालिद मजीद थे। उन्होंने हिताब में इन्वेस्टर फोरम के अगराज़ व मकासद व कारकर्दगी की तारीफ की। कौंसल जनरल ने मारूफ बिजनेसमैन चौधरी शफकत महमूद और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने पाकिस्तान के सरमायाकारों को नहायत कलील मुद्दत में सऊदी अरब लाकर इनको मुतारफ़ कराया। ये मकसद है कि पाकिस्तानी सरमायाकारों को एक मुस्तर आवाज़ बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करे। यहाँ मुकर्रीन ने अपने अपने तजर्बे के मुताबिक अच्छी तजावीज़ दी हैं। पाकिस्तानियों की मलकियत की तमीर व तरक्की में शबो रोज़ मेहनत से सऊदी कम्यूनिटी में नेक नामी हुई है। हमें चाहिए जितने मौके यहाँ पैदा हो रहे हैं इनसे फ़ायदा उठाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कौंसलेट की नई बिल्डिंग में इन्वेस्टर फोरम को ऑफिस की जगह दे, लेकिन शर्त यह है कि आप लोग अच्छा और जानदार काम करें। उन्होंने तजवीज़ दी है कि फोरम अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपनी वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर अकाउंट, इंस्टा वगैरह बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कारोबारी मेंबर बनाएं। हमारे दरवाजे हमेशा की तरह आप लोगों के लिए खुले हैं। फोरम के चेयरमैन चौधरी शफकत महमूद ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। मेंबर फैसल ताहर खान, सलमान अराइन, डॉक्टर मोहम्मद नकाब, यूनुस अनायत ने अपने मुशाहदात और तजुर्बात से आगाह किया। पाकिस्तान कौंसलेट से कमर्शियल कौंसलर सादिया खान, प्रेस कौंसलर चौधरी मोहम्मद इरफान और दीगर ने खिताब। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर से अबर शामिल करते हुए अवामी तहरीक तहसील मेहर की तहसील कमेटी का इजलास तहसील सदर एडवोकेट दाद मोहम्मद मगसी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ, जिसमें अवामी तहरीक के मरकज़ी कानूनी मशीर एडवोकेट नजीबुर्रहमान मेहसर ने खुसूसी शिरकत की। इजलास में तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और मनसूबाबंदी की गई। इजलास में फैसला किया गया कारपोरेट फार्मिंग और ज़राई इनकलाब के नाम पर दरियाए सिंध से 6 कनाल निकाल कर सिंध को रेगिस्तान बनाने और सिंध की ज़मीनें नीलाम करने की साजिश के खिलाफ अवामी तहरीक तलका मेहर की जानब से जनवरी में एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। अवामी तहरीक तहसील मेहर की तहसील
कमेटी का इजलास तहसील सदर एडवोकेट दाद मोहम्मद मक्सी की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें अवामी तहरीक के मरकज़ी कानूनी मशीर एडवोकेट नजीबुर्रहमान महिसर ने खसूसी शिरकत की। इजलास में तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और मनसूबाबंदी की गई। से अब शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ। मुजफ्फर आबरू के सखर के रहने वाले नौजवान गुलाम मोहम्मद मेमन। इस नौजवान ने कहा कि प्रेस क्लब में पहुंचकर मैं मजलूम हूं, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मुझसे गुर्दा लिया गया जो नासिर अली शाह का पीए है। गुलाम नबी जिसने मुझसे गुर्दा लिया, इसने कहा कि ड्यूटी का लालच देकर मुझसे गुर्दा भी लिया, मुझे ड्यूटी भी नहीं दी। मैं अभी भी काम करने के लायक नहीं हूँ। अगर जो वजन या मजदूरी कर रहा हूँ तो इसकी वजह से मेरी जान जाने का खतरा है। मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझसे हक किया जाए। मेरी 2 छोटी बेटियां हैं जिनके लिए मुझे रोज़गार चाहिए। मैं इतना मजलूम हूँ। डीसी सकर डीसी से अपील की जाती है और आला अख्तियार से अपील कर रहा हूँ और सैयद मुराद अली शाह से भी अपील कर रहा हूँ। साईं खुर्शीद से भी अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। गुलाम मोहम्मद आए ऐं अब्दुल नबी मेमण आहे, उहो साईं नासिर शाह जो पीउ आहे। उन मूंखे चयो हो त मुंहिंजी न्याणी खे तूं गुर्दो ॾे, मां तोखे नौकिरी वठी ॾींदुमि। हाणे मूंखे जवाबु ॾिनो त मां तोखे नौकिरी न ॾींदुमि। तो साईं नासिर शाह खे, साईं मुराद अली शाह खे त मूंसां जेकी मुंहिंजी कमिटमेंट अथसि उहा मुंहिंजी कमिटमेंट पूरी करे। मां बीमार आहियां, मुंहिंजा बचड़ा बुख ते आहिनि। डॉक्टरनि मना कई आहे कमकार कंदे वज़न खणंदे तुंहिंजो ॿियो बि गुर्दो फेल थी वेंदो। मां साईं नासिर शाह, साईं मुराद अली शाह खे जेके बि सरकारी इदारा आहिनि उन्हनि खे मां रिक्वेस्ट कयां थो त मुंहिंजी वधि में वधि मदद कई वञे। जेके बि तालीम इदारा आहिनि उन्हनि खे मां चवां थो मूंखे नौकरी दिलाई वञे बराए मेहरबानी। हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर जामिया मस्जिद मदरसा गोसिया फरीदिया जामिया उम्मे हबीबिया लबनात गली नंबर 16 ओल्ड सिटी थाना चौक में दस्तार फजीलत चादरपोशी की महफिल ज़ेर सदारत कारी मोहम्मद अकमल तोनसवी मोहतमम मदरसा मुनक्कद हुई, जिससे मरूफ मुबल्लिग अलामा मौलाना ज़ियाउल्लाह मुस्तफ़ाई गुजरांवाला कारी मोहम्मद अकमल तोनसवी अलामा मोहम्मद सलीम चिश्ती ने खिताब करते हुए कहा कि आज के पुरफतन दौर में सिर्फ कुरान पाक से रहनुमाई लेकर हम अपनी दुनिया को संवार सकते हैं। कुरान पाक वो किताब है जो दरसे इनकलाब है। कुरान पाक एक आलमगीरी किताब है जिसमें हर मसले का हल मौजूद है। जिन बच्चों ने आज के माता परस्ती के दौर में कुरान पाक को अपने दिलों में महफूज किया है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कुरान पाक से दूरी की वजह आज हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, अगियार हम पर गालिब आ रहे हैं। बादज़ां हफाज कराम और दरसे निज़ामी वाले तुलबा तालबात की दस्तारबंदी चादरपोशी की गई। इस मौका पर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका मकामी उलमा कराम कसीर तादाद में मौजूद थे। रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते सैयद साजिद नकवी से यूनियन कौंसिल दहामा सईदा का बड़ा एजाज़। सैयद अरसलान काज़मी SHO FIA इस्लामाबाद तैनात। यूनियन कौंसिल दहामा सईदा के लिए एक तारीखी लम्हा। सैयद रियाजत अब्बास काज़मी एडवोकेट के साहबजादे सैयद अरसलान काज़मी को FIA इस्लामाबाद में SHO के तौर पर तैनात किया गया है। ये न सिर्फ इनके ख़ानदान बल्कि पूरे इलाके के लिए बड़ा एजाज़ है। सैयद अरसलान काज़मी ने अपनी मेहनत, काबिलियत और पेशा वराना कारकर्दगी से खुद को नुमाया किया। आज इनकी मेहनत का फल इन्हें मिला है। इनकी तैनाती इलाके के नौजवानों के लिए एक मिसाल है कि मुसलसल मेहनत और लगन से कामयाबी के दरवाजे खुल सकते हैं। दहामा सईदा का शुमार इन इलाकों में होता है जहां के लोग अपनी आला रवायात, तालीम और तरक्की के लिए जाने जाते हैं। सैयद अरसलान काज़मी की कामयाबी इस बात का सबूत है कि यहाँ के नौजवान किसी भी मैदान में अपनी सलाहियतों को लोहा मनवा सकते हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह सैयद अरसलान काज़मी को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और उन्हें मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए ताकि वो अपने इलाके और मुल्क का नाम रोशन करते रहें। इस मौका पर मेंबर प्रेस क्लब अडियाला सीनियर सहाफ़ी सैयद साजिद नकवी ने सैयद अरसलान काज़मी को मुबारकबाद दी और मज़ीद तरक्की कामयाबी की दुआ दी। कसूर थाना कोट राधा किशन पुलिस ने SHO डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़कार की सरबराही में कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमा में अरसा 1 साल से मतलूब A कैटेगरी के मुलज़म इश्तहारी को गिरफ्तार कर लिया। कसूर से रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर उसामा मनसब। मुलज़म इश्तहारी अब्दुर्रहमान जो के हुल्लर के पैमार कोट राधा किशन का रहायशी है को जदीद टेक्नोलॉजी को बरकरार लाते हुए गिरफ्तार किया गया है। कसूर पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुलज़म इश्तहारी ने साल 2024 में मासूम शहरी को नाहक कत्ल किया था। थाना कोट राधा किशन पुलिस ने मुलज़म इश्तहारी का 4 रोज़ा जुडिशनल रिमांड हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।